Alright class, so now we are moving towards the third and fourth application of the dimensional analysis technique. In previous questions we have studied how to find relation between a quantity and the factors on which that quantity depends. In second application we learned how to check correctness of a given equation. In third application we learned how to find the dimensions of a quantity which is not known to us but is given in an equation. Now this is the fourth application in which we are going to convert one unit system's value into some other unit system's value. That means, for example, take this question. In this question, atmospheric pressure is given as 10 to the power 5 Newton per meter square. That means atmospheric pressure is given in SI system and they are asking you to convert this value in CGS system. So let us find the way to find this value correctly. There are few definite steps which you have to follow and you will reach to the correct answer. So the first thing is that if numerical value of a given quantity is N1 in system U1 and numerical value of the same quantity is N2 in system U2, then N1 U1 is equal to N2 U2. This is the key point, right? Alright, now just take this example that numerical value is 10 to the power 5 in SI system, right? So in SI system, whatever is the dimensional formula of this quantity, we know that if you change the system, dimensional formula does not change. That is what we are going to use here. 10 to the power 5 is the numerical value and you write here dimensional formula. That means the factors, the fundamental quantities on which this pressure depends. You write dimensional formula of pressure here. Then N2 is the quantity which you have to find. Okay, leave it as N2. But dimensional formula in other system will remain same. So you write the dimensional formula of this quantity. That is whatever is the dimensional formula here, that will be the dimensional formula here also. Write it here. Now see it carefully. This is 10 to the power 5 and this is dimensional formula of pressure. If you don't remember, then you can find it at the side of the solution, the dimensional formula of the pressure. Right? It is force upon area. So write dimensional formula this side also, then N2 and dimensional formula this side also. Now you need to calculate N2. Leave N2 this side and bring the dimensional formula this side. Now this is the dimensional formula in SI system and this is dimensional formula in CGS system. So we will replace the mass with kg, length with meter, time with second for SI system dimensional formula. That means we will replace the units. The fundamental quantities are here. We will replace their units in SI system. And fundamental quantities are here. We will replace these quantities unit in CGS system here. So just look at the final expression. N2 is equal to 10 to the power 5. Then kg. This is meter inverse. See, power is, carefully write the power as it is. Then second to the power minus 2. Okay. Then this is the dimensional formula in CGS. So replace the unit of these quantities in CGS system. Mass in grams, length in centimeter and time in second with correct power. Now just observe
you are given SI system value and you need to calculate it in CGS system. That means you want CGS system finally. You do not want MKS system or SI system. So since you need to calculate answer in CGS system, so convert these SI quantities into CGS quantities. So kg means 1 kg. It will be 1000 gram. Replace 1 kg with 1000 gram. Replace 1 meter with 100 centimeter, but be careful. This is meter inverse. So replace meter into 100 centimeter with correct power -1. Then this is second and this is second. Same, no problem. Just cut it. Now grams will be cancelled. Centimeter inverse will be cancelled. You will be left with 1000 into 100 to the power -1. Now you can simply calculate the final value. 2 0 यहाँ से चले गए, एक 10 इसमें ऐड होकर 10 to the power 6 हो गया. तो अब वैल्यू n2, देखो n2 के साथ यूनिट नहीं आनी चाहिए थी, तो यूनिट कट गई, यानी हम सही कर रहे हैं. यूनिट हट गई और वैल्यू n2 इतनी आ गई. अब जब आप फाइनली आंसर लिखोगे तो आंसर आप इसको n2 की जगह आप लिख सकते हो आंसर. तो आंसर में आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखोगे, उसकी यूनिट भी साथ में लिखोगे. तो कि CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से. तो तरीका क्या है कि आप इसको एक बार फिर से देखो. आप वैल्यूज़ यहाँ लिखोगे, डायमेंशनल फॉर्मूले से रिप्लेस करो. पहले यूनिट की जगह डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो और ध्यान रखो कि कौन सा डायमेंशनल फॉर्मूला किस सिस्टम के लिए है. उसके बाद जिस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है उसे छोड़कर वो डायमेंशनल फॉर्मूला इधर ले आए. अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, क्योंकि ये यूनिट था ना, इसकी जगह हमने डायमेंशनल फार्मूला लिखा था, तो यूनिट्स रिप्लेस करो. ये SI सिस्टम की यूनिट्स है तो वो लिखी. ये CGS सिस्टम की यूनिट होनी थी तो यहाँ पे वो लिखी. अब ये SI सिस्टम में है और हमको CGS में चाहिए, तो SI सिस्टम को CGS में चेंज करके ऊपर लिखो. पावर सही सही लिखना, तभी आंसर सही आएगा. और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो. इस प्रैक्टिस को ठीक से करने के लिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में, और ये सारे क्वेश्चंस न्यूटन फिजिक्स की एक्सरसाइज से लिए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 22 है, पावर इज 1 मेगावाट एंड यू हैव टू कन्वर्ट दिस पावर, दिस वैल्यू इनटू अ सिस्टम इन विच फंडामेंटल यूनिट्स आर 10 kg, 1 डेसीमीटर, 1 मिनट. ये ट्रिकी क्वेश्चन है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं. स्टेप्स फॉलो करो, आप बिल्कुल करेक्ट आंसर पर पहुंच जाओगे. स्टेप्स फॉलो करो. हमको इन सब वैल्यूज़ को देखकर कि अरे फंडामेंटल यूनिट ये तो सिंपल है, SI से CGS में कन्वर्जन नहीं है, ये तो अलग ही कुछ यूनिट्स दे दी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. देखो कैसे करेंगे इसको. सबसे पहले हमने N1 U1 इक्वल टू N2 U2 लिखा, ठीक है ना. 10 to the power 6 वॉट लिखा मैंने 1 मेगावाट को. यहाँ पर देखो SI यूनिट है वॉट, तो आप मेगावाट को पहले SI यूनिट में चेंज कर लो और 10 to the power 6 इसकी वैल्यू हो गई. N2 और U2 तो बिल्कुल अलग ही है, तो U2 को आप ऐसे ही लिखा रहने दो. अब हमने वॉट, हमें पता है पावर की यूनिट है, तो हमने अब वॉट की जगह पे पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दिया. वैल्यू ऐसे ही लिखी रहने दी. N2 पता करना है, पावर का डायमेंशनल फार्मूला एज इट इज़ लिख दिया, क्योंकि यूनिट कुछ भी हो डायमेंशनल फार्मूला चेंज नहीं होना है. अब हमने 10 to the power 6 और इसको पता है हमें कि SI यूनिट्स हैं. N2 को पता करना है, तो एक साइड में छोड़कर बाकी सब दूसरी साइड में ले आए. 10 to the power 6 ये SI यूनिट से रिप्लेस होंगी वैल्यूज़, और नीचे जो वैल्यूज़ उन्होंने जो क्वांटिटीज़ दी हैं कंसीडर करने के लिए, वो कैसे देखो. SI यूनिट में जो मास है वो क्या हो जाएगा, kg. SI यूनिट में लेंथ हो जाएगा मीटर और ये स्क्वायर. टाइम सेकेंड और ये पावर -3.
नीचे आए तो हमें ध्यान है कि ये मास को उन्होंने कहा है कि 10 kg उसका फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, मास की जगह लिख लिया 10 kg। लेंथ की जगह उन्होंने कहा 1 डेसीमीटर उसकी यूनिट है, तो हमने लिखा डेसीमीटर और साथ में ये स्क्वायर। टाइम उन्होंने कहा मिनट में है, तो हमने लिखा मिनट और ये -3। अब हमें पता है कि हमको इस यूनिट को रखना है और ये यूनिट हटानी है, इस यूनिट में वैल्यू चाहिए, तो रिप्लेस करना शुरू करो इन यूनिट्स को इन यूनिट्स में, तभी तो यूनिट्स कैंसिल होंगी और फाइनली हमारे पास n2 यानी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर बचेगी। क्लियर हो रही है ना बात? हमें n2 निकालना है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम जिस यूनिट को नहीं रखना है उसे जिस यूनिट को रखना है उसमें कन्वर्ट करके लिखते हैं, यूनिट्स कैंसिल हो जाती है, सिर्फ वैल्यू बचती है यहाँ पर। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हाँ, साथ में पावर, अगर आपको पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला ना याद हो तो आप वर्क अपॉन टाइम करके वर्क की यूनिट और टाइम की यूनिट, एनर्जी की यूनिट और टाइम की यूनिट से पावर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो साइड में कैलकुलेट करके तब सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पर। तो अब हम इसको कैरी करते हैं अगले पेज पे। देखो, अब ऊपर केजी है और नीचे 10 kg है, तो फिर केजी को चेंज करने की ज़रूरत तो है नहीं, तो ठीक, इसे लिखा रहने दिया। मीटर स्क्वायर है, नीचे डेसीमीटर है, हमें पता है हमें ये यूनिट रखनी है, ये हटानी है, तो मीटर 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, तो हमने 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर लिखा और यूनिट केयरफुली कैरी करते गए। जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले में हमारे उस फैक्टर की पावर थी वो केयरफुली कैरी करना है। ये इसको बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये हड़बड़ी में हम भूल सकते हैं। अच्छा, अब इधर नीचे मिनट है, यहाँ सेकंड है। हमको पता है कि 1 सेकंड 1/60 मिनट्स होता है, तो मैंने सेकंड की जगह 60 to the power -1 लिखा, फिर केयरफुली इसकी जो यूनिट है ना -3 वो लिख दी, और अब मैंने सेकंड को किस में बदल दिया था? मिनट में। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 60 to the power -1 मिनट, उसका -3 पावर, तो ये 60 के साथ -3 पावर, ये मिनट के साथ -3 पावर। आई होप कि आपको केयरफुली ये जो कैलकुलेशन की बहुत बारीक बातें हैं वो समझ आ रही हैं। अब हमने डेसीमीटर कैंसिल कर दिया, मिनट कैंसिल कर दिया, केजी कैंसिल हो गया, आपके पास सिंपल वैल्यूज़ बची, सिंप्लीफाई किया और ये आपका आंसर आ गया। जब आप आंसर लिखेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ यूनिट भी लिखेंगे एज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा कि फोर्स 36 यूनिट्स है उस सिस्टम में जिसमें मास केजी में है, लेंथ मीटर में है, पर टाइम मिनट में है, और कहा कि इसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दो इस वैल्यू को। तो सेम n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, n1 की जगह 36 और u1 की जगह पर आप इसका डायमेंशनल फार्मूला रिप्लेस करिए, n2 पता करना है, u2 की जगह डायमेंशनल फार्मूला, n2 इज इक्वल टू इस डायमेंशनल फार्मूले को नीचे ले आए। अब हमें पता है कि ये वाली जो यूनिट है वो यहाँ दी हुई है, तो मास केजी में, लेंथ मीटर में और टाइम मिनट में कहा है, तो मैंने टाइम की जगह मिनट लिखा और पावर -2। सिमिलरली नीचे सीजीएस सिस्टम रखना है, तो मास ग्राम्स, लेंथ सेंटीमीटर और टाइम सेकंड में और साथ में पावर। अब हमें पता है कि हमें सीजीएस सिस्टम रखना है, एमकेएस सिस्टम हटाना है, तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में, मिनट को सेकंड में, 1 मिनट की जगह 60 सेकंड, और 60 की भी पावर -2, सेकंड की भी पावर -2। ध्यान ये रखना कि फाइनली ये जो यूनिट्स है कोई बचनी नहीं चाहिए, सब कैंसिल हो जानी चाहिए, तभी हमारा आंसर करेक्ट जा रहा है, क्योंकि n2 निकाल रहे हो तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बचनी चाहिए, साथ में यूनिट नहीं बचनी चाहिए। तो अब ग्राम्स, सेंटीमीटर, सेकेंड स्क्वायर माइनस सेकेंड टू द पावर -2 कैंसिल हो गया, वैल्यूज़ बची, आपने कैलकुलेशन किया और आपको फाइनल आंसर मिल गया 1000। अब जब आंसर आप लिखो, यहाँ n2 की जगह आंसर लिखो, हर जगह पर
आंसर जब आप लिखो तब आप 1000 डाइन 36 न्यूटन फाइनली इन CGS सिस्टम बिकम्स 1000 डाइन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखो, तो ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, आप इन्हें कैलकुलेट करके और अगर प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हो। ठीक है। Similarly, question number 21 is also very simple question. So I am leaving it for you as a homework. In the next class, I am going to discuss the last type of question which is very important in competitive exams, and that is why that part will be where I will discuss all the questions which are from the previous NEET and JEE mains questions पेपर्स। ठीक है ना। तो अगली बार हम लोग अगले क्लास में सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो नीट और मेंस में आए हैं, और वो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो आपको डायमेंशनल एनालिसिस से सीखना है। उसके बाद हम लोग वेक्टर्स पर मूव कर जाएंगे।